Let's get into the word right now. चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I'm continuing in my series और अपनी श्रृंखला को हम जारी रखे हुए हैं about the tabernacle of Moses. मूसा के तंबू के बारे में। And today we're going to look at the bronze laver. और देखिए आज जो हम पीतल के हौदी के बारे में देखने जा रहे हैं। So quickly let's get into the word right now. तो जल्दी से आइए वचन में जाएंगे इस वक्त। Go with me to the book of Exodus chapter 30 right now. निकालिए निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय And let's read from verse 17 onwards. और आइए पढ़ेंगे उससे 17वें वचन से। Then the Lord said to Moses, फिर प्रभु ने मूसा से कहा, make a bronze wash basin with a bronze stand. धोने के लिए पीतल की एक हौदी बना ले। Place it between the tabernacle and the altar. और आगे लिखा है उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखना And fill it with water. और उसमें पानी भर देना। The first thing we're going to see it right now, और पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है, that the position of the bronze laver. देखने जा रहे हैं कि पीतल की हौदी जो है उसकी स्थिति किस या मुकाम पर रखी जा रही है। Notice that it was placed between the tabernacle and the altar. और गौर करें कि इसे जो है मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखा जा रहा Let's है। read verse 19. और आइए पढ़ेंगे 19वें वचन में। Aaron and his sons will wash their hands and feet there. उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करें। They must wash with water whenever they go into the tabernacle to appear before the Lord, and when they approach the altar to burn their special gifts to the Lord, or they will die. देखिए वचन लिखा 20वें वचन में, और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव पानी से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात प्रभु के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। They must always wash their hands and feet or they will die. This is a permanent law for Aaron and his descendants to be observed from generation to generation. और आगे वचन में लिखा है, यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। I want you to make careful notes today. और चाहते हैं कि आप बड़े गौर से ध्यान लगाएं इस The पे। first thing, पहली चीज, we're going to look at how the bronze laver was made. और हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे वो पीतल की हौदी बनाई गई। Let's turn our Bibles to the book of Exodus chapter 38 right now and verse 8. चलिए निकालते हैं इस समय निर्गमन की पुस्तक उसका 38वां अध्याय उसके 8वें वचन में It tells us बताता है वचन, that the bronze laver was made of bronze mirrors. ये हौदी जो बनाया गया था पीतल के एक दर्पण इसके साथ बनाया गया। Now please understand this. और ध्यान से समझिए, In those days they did not have mirrors like we do. और देखिए उन दिनों में, देखिए आज जिस प्रकार का आईना हमारे पास है उस प्रकार का आईना उन दिनों में नहीं होता They था। used to take bronze and put it in the smelting furnace. Then it used to get a sheen over it, and then the women would use that as a mirror. और देखिए उन्हें पीतल लेकर उसे चमकाना पड़ता था, उसे रगड़ना घसना पड़ता था, फिर उसके बाद पिघलने वाले जो तरल पदार्थ जो उस पर के नीचे लाया जाता था, फिर उसके बाद महिलाएं जो है उसे साफ करती थीं। Notice over there it says the bronze mirrors of the serving women who assembled at the door of the tabernacle of meeting. और देखिए गौर करें यहाँ पर लिखा गया है मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। Interesting that the women contributed to the making of the laver. और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर हौद बनाने के कार्य में महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था। The women were involved in making of the laver. Come on और somebody. ये हौदी बनाने के कामों में देखिए महिलाएं भी शामिल हुई थीं। So it's not all a man thing. So you see women and men, God sees them so equally. तो हमेशा यहाँ पे देखिए आदमी नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं आदमी और औरत परमेश्वर दोनों को एक समान दिखता है। Many people they fight over that, oh, men should preach the gospel or women should preach the gospel over there. But I'm going to come to that, something very interesting over here. और देखिए बहुत सारे लोग इस पर वाद विवाद करते रहते हैं कि मर्दों को प्रचार करना चाहिए, महिलाओं का प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों कर। देखिए आज कुछ दिलचस्प बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। Yeah. So the first thing over here, that mirrors in the natural realm are used to look at oneself. और देखिए अगर दर्पण यानी आईने को आप देखें स्वाभाविक स्तर में, तो इसमें खुद को देखा जाता है So that we become presentable to the people around us. ताकि हम अपने आसपास के लोगों के सामने अच्छे से पेश आ सकें। In other words, we are ready to meet the society. और दूसरे शब्दों में कहें तो हम समाज से मिलने के लिए तैयार होते Now हैं। God doesn't see as man sees. The scripture says in the book of 1 Samuel. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है पहला शमूएल के पुस्तक में कि परमेश्वर वैसा नहीं देखता है जैसा मनुष्य देखता है। He just doesn't want us to be clean outwardly. He wants us to be clean inwardly. और वो सिर्फ हमें बाहर से ही साफ सुथरा नहीं लेकिन अंदर से भी साफ सुथरा देखना चाहता है। So you see, this bronze laver was something very important in the eyes of God. तो आप देखते हैं ये पीतल की हौदी जो है परमेश्वर की नजर में बहुत ही खास मायने रखती थी। What is the significance of the mirror in the New Testament? The bronze laver. Let us see that right now. और देखिए पीतल की हौदी या कहें तो दर्पण यानी आईने का महत्व क्या पड़ता है इस नए नियम में ध्यान से Apostle देखेंगे। James gave us a very, very powerful revelation. और हम देखते हैं प्रेरित याकूब को जो एक बहुत ही जबरदस्त प्रकाशन देते हैं। He was a Jew. वो एक यहूदी थे And he understood the importance, the significance of the bronze laver in the New Testament theology. और देखिए उन्होंने उस
पीतल के हौदी का देखते हैं कि नए नियम के विचारधाराओं तत्व ज्ञान में उस अहमियत को समझ लिया था। I want you to understand this secret right now. और चाहते कि उस रहस्य को आप समझें। And here he reveals a secret over here. यहाँ पर देखिए उस रहस्य को वो जाहिर करते हैं। James 1 verse 23 right now. याकूब की पत्री पहला अध्याय 23वां वचन। For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Did you see that right now? 23वां वचन में देखें, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो लेकिन वचन पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह आईने में देखता है। When the priest used to look in the bronze laver, देखिए जब याजक उस पीतल की हौदी में देखते थे he used to see his face. तब उन्हें अपना चेहरा दिखता था। And here James is calling the word of God as a mirror. और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब की पत्री में परमेश्वर के वचन को एक आईने के समान कहा गया Verse है। 24 says, he observes himself and goes away and forgets what kind of man he was. 24वां वचन कहता है इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा व्यक्ति दिखता है। But what it says is, watch over here, it says, लेकिन आगे देखिए क्या कहता the है। person who's not a forgetful hearer, the person who does not forget the way he looks but starts dealing with it and does the work, this person will be blessed in what he does. लेकिन वो व्यक्ति जो देखकर भूलता नहीं है कि कैसा वो दिख रहा था और जाकर उन कामों को करता है तो वो अपने कामों की वजह से आशीष पाएगा। So the first thing, the bronze laver, what it represented. तो पहली चीज हम देखते हैं कि पीतल की हौदी किस बात को प्रस्तुत करती The है। bronze laver represented the word of God. यहाँ पर हम देखते हैं पीतल की हौदी जो है परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करती How है। many of you are understanding this truth right now? कितने सच्चाई को समझ रहे हैं? It was like a mirror. It showed you the way you looked. And even when we read the word, we look at the word, it reveals to us who we are. और देखिए यह हम पर यह परमेश्वर का वचन जाहिर करता है कि हम कैसे दिखते हैं और जब हम वचन में देखते हैं तो दरअसल हम पर यह बात प्रकट हो जाती है कि दरअसल हम कौन हैं। So the bronze laver, the first thing, it represented the word. तो पीतल की हौदी हम देखते हैं पहली चीज जो वो जाहिर करती है या प्रकट करती है वह है वचन। And it directly represents Jesus, because you see, the very first verse of the Gospel of John says, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Speaks about Jesus. Come on, somebody. तो हम देखते हैं यह पहले वचन की ओर इशारा करती है या प्रतिनिधित्व करती है और यही वचन हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं पहले वचन में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यीशु मसीह के बारे में यही यह प्रतिनिधित्व करती है। Praise God. प्रभु की स्तुति So हो। you see how directly when the priest used to go and wash himself in the bronze laver, first thing is to see is his own reflection. तो पहली चीज जब याजक जाते थे और जाकर वो पीतल की हौदी में अपने आप को जब धोते थे तो पहली चीज जो उनको दिखती थी उनका खुद का स्वरूप उनको दिख जाता था Before he could enter the tabernacle. इससे पहले कि उस मिलाप वाले तंबू में जाएं। Are you following me right now? क्या आप समझ रहे हैं? So it represents the word. तो यह वचन का प्रतिनिधित्व करती The है। second thing over here, दूसरी चीज जो यहाँ है the Bible says that bronze laver, देखिए बाइबल ऐसा कहती है ये पीतल की हौदी जो है it was filled with water. It was not small, it was quite big. और देखिए ये छोटा नहीं होता था लेकिन ये बड़ा होता था। And if you read Ephesians 5, it says, और अगर आप पढ़ेंगे इफिसी की पत्री उसके 5वें अध्याय में where the word is compared with water. जहां पर हम देखते हैं कि वचन की तुलना जो है परमेश्वर के वचन से की गई है। Verse 26 says that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. कि वह उसको वचन के द्वारा यानी पानी के स्नान से उसे शुद्ध करके पवित्र बनाए। Notice the word sanctify over here. और गौर करें यहाँ पे वचन जो आया है पवित्र बनाया जाना। The burnt altar speaks of salvation. होम बलि की जो वेदी जो है ये उद्धार के बारे में बताती है। And then from there you come to the bronze laver. फिर उसके बाद वहां से आप ये पीतल की हौदी के पास आते The second thing it speaks of is sanctification. हैं। और ये दूसरी चीज जो बताती है वो ये है पवित्रीकरण। Hallelujah. Hallelujah. Don't stop with salvation. तो आपको सिर्फ उद्धार के स्तर में ही नहीं रुकना है। Oh, hallelujah. I've received salvation now, praise God. No, you've moved to the word now. ओ हालेलुया मुझे उद्धार मिल गया अब मैं बच गया हूं। इसी स्तर में नहीं रुकना है, आपको वहां से आगे वचन की It ओर is आना the है। word that sanctifies us. It is the word that separates us from the world around us. और देखिए ये वचन ही है जो हमें शुद्ध करता है, यह वचन ही है जो हमारे आसपास की दुनिया संसार से हमें अलग रखता है। As the priests, they spent much time at the laver. They used to wash their hands, they used to wash their feet. याजकों को ज्यादा समय जो है उस हौदी के पास ही बिताया पड़ता था और वे अपने हाथों को धोते थे, उससे पांवों को धोते थे। And only then they could enter the tabernacle to serve God. और फिर उसके बाद ही वो मिलाप वाले तंबू में जा सकते थे परमेश्वर की सेवा करने In को। the same way, उसी तरीके से we as New Testament priests,
हम नए नियम के याजक लोग, we must spend time in the word. हमें वचन में समय बिताना चाहिए। Somebody asked me, how do I serve God? और किसी ने पूछा कि कैसे मैं प्रभु की सेवा कर The सकता हूँ? first thing, पहली चीज, get into the word. वचन में जाएं। Pastor, how do I sanctify my और thoughts? पासवान जी, कैसे मैं अपने विचारों को शुद्ध कर सकता Get हूँ? into the word. Just don't read, two small lines, one small paragraph. Read it till it fills you up. वचन में जाइएगा। देखिए, दो छोटे से वाक्य आपको नहीं पढ़ना है या छोटा सा कोई पद नहीं पढ़ना है, तब तक आप भरते जाएं, पढ़ते जाएं, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो You जाते। don't read the word so that you can preach to others. You don't read the word so that you can WhatsApp it to others. You read the word so that it fills you and it sanctifies you. Can I have a good amen, somebody? देखिए, आप वचन इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि आप दूसरों को प्रचार कर सकें या किसी को व्हाट्सएप पर आप भेज सकें। नहीं नहीं नहीं, आप वचन को इसलिए पढ़ते हैं ताकि यह आपको भर सके। So the first thing, तो पहली the चीज, word shows you who you are, the mirror. वचन यह आपको दिखाता है कि आप कौन है, आईना। The second thing, दूसरी चीज, the word cleanses you, it sanctifies you, speaks over the water over there, the washing. और वचन जो है यह आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। देखिए, यह आपको धोए जाने के लिए यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर बता रहा है। So this is the thing that you need to understand, that in the tabernacle everything pointed towards Jesus. तो आपको यह खास बात समझने की जरूरत है कि उस मिलाप वाले तंबू में हर कोई चीज जो है यीशु की ओर ही इशारा करती है। The second thing I want you to understand is this, और दूसरी चीज जो चाहते हैं कि समझे हो, is the purpose of the bronze laver. और यह पीतल की जो हौदी है उसका उद्देश्य क्या है। I want you to see the position of the bronze laver. और चाहते हैं कि वो पीतल की हौदी की स्थिति क्या है, कहां पर है। देखिए, See, we spoke about the entrance gate, और देखिए, हमने प्रवेश द्वार के बारे में चर्चा की है। then we spoke about the bronze altar, उसके बाद जो हमने वो पीतल की जो वेदी थी उसके बारे में चर्चा की है। and now we are looking at the third one, is the bronze laver. Can you see that over there? तीसरी चीज पर हम गौर कर रहे हैं, वो है पीतल की हौदी। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So you see, the laver was placed between the altar and the holy place. आप देखते हैं कि ये हौदी को जो है वेदी और पवित्र स्थान के बीच में रखा गया था, So the priest entered through the entrance gate. ताकि याजक जो है प्रवेश द्वार से अंदर आए, He would sacrifice over there. वहां पर आकर वो बलिदान चढ़ाए, Then he would go to the bronze laver, फिर उसके बाद वो पीतल की हौदी के पास जाए, wash himself, अपने आप को धोए, and then enter the tabernacle or come to the bronze altar to offer the sacrifices for the people. उसके बाद या तो उन्हें पवित्र स्थान में प्रवेश करना तो जा सकते हैं, या तो फिर वापस उनको लौट के आना है उस वेदी की ओर, ताकि लोगों के बलिदान, लोगों के तरफ से बलिदान कर सकें। You know, Paul wrote to his protege Timothy. और देखिए, हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने अपने शिष्य को तीमुथियुस को लिखा। He said, Timothy, उन्होंने ऐसा लिखा, he says, तीमुथियुस, till I come, prepare yourself with the word. जब तक मैं ना आऊं, वचन के जरिए अपने आप को तैयार कर देना। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Today many people, they want somebody to lay hands on them, somebody to prophesy, and that's all very good. Praise God for all that. और आज बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि कोई आकर उन पर भविष्यवाणी करे, उन पर हाथ रखे, और ये सब कुछ अच्छा है, प्रभु की स्तुति हो But इसके you लिए। see, it's the word that really prepares you and builds you. लेकिन आप देखते हैं असलियत में ये वचन ही है जो आपको तैयार करता है, आपको मजबूत बनाता है। Let me go to the third point right now, चलिए quickly. जाते हैं तीसरे मुद्दे पर, You see, very interesting thing I want to tell you about और this. चाहते हैं कि बड़ी दिलचस्प बात इस पर गौर करें। In all the tabernacle, और पूरे तंबू में the sizes and the measurements are given for every article or every piece of furniture. हर एक प्रकार के जो फर्नीचर और जो भी सामान बनाए गए हैं उन सब का आकार और माप के बारे में बताया गया। But only for the bronze laver, लेकिन सिर्फ यही पीतल की जो हौदी थी उसके there were बारे no में measurements. इसके लिए कोई माप नहीं था। Very interesting. बहुत ही दिलचस्प था। And the second thing was, और दूसरी चीज, for every piece of furniture, there were two sticks running parallel where the people would carry it. और देखिए, हर एक चित्र के हम देखते हैं कि दो लकड़ियां जो लाठी जैसे उसमें लगे रहते हैं ताकि लोग उसको उठा के जा But सके। for the bronze laver, there was nothing to carry it. लेकिन हम देखते हैं इस पीतल की हौदी के लिए उठा कर लेके जाने की कुछ भी नहीं This था। is very prophetic. ये बहुत ही भविष्यवाणी तौर पे Because you see, we don't carry the word carries us. Somebody say क्योंकि आप amen. देखते हैं हम वचन को उठाकर नहीं चलते, वचन हमको उठा के चलता I है। feel the anointing. Hallelujah. महसूस कर रहे हैं इस Are you वक्त? listening right आप now? सुन रहे हैं इस The वक्त? Bible says he upholds everything with his word. और देखिए, बाइबल ऐसा कहती है कि वो सब कुछ अपने वचन के जरिए, अपने सामर्थ के जरिए संभाले We रखता are है। not even told how it was carried. और देखिए, हमें बताया भी नहीं गया है इसके जरिए कि कैसे उठाए ले जाते There हैं, is a reason for that. और इसके पीछे एक उद्देश्य है। Somebody say, I'm receiving right now. कोई कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. See, nothing in the tabernacle was without prophetic significance. और देखिए, उस मिलाप वाले तंबू में कोई भी चीज बिना भविष्यवक्ताई के अहमियत के नहीं था। I want you to understand this truth, guys. चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को समझ जाएं That the word is not ordinary, the word is prophetic. It has revelations that will really shock you. कि वचन जो है ये कोई मामूली या साधारण नहीं है। वचन जो है भविष्यवक्ताई तौर पे है, ये आपको प्रकाशन देगा, ये आपको चकित करके रख देगा। Praise God. प्रभु
प्रभु की स्तुति हो। Can we go further right now? क्या हम आगे जा सकते हैं इस वक्त? Now I want to show you something that will really bless you. अब आपको कुछ ऐसा दिखाने जा जो यकीन आपको आशीष You know, पहुंचाएगी। as I was meditating on this, जैसे पासवान जी मनन कर रहे थे I felt such a strong anointing upon this word. और इस वचन पर इन्होंने बड़े सामर्थ्य अभिषेक को महसूस किया। The bronze laver had one great purpose. It was for washing and cleansing the priest from all defilement. और देखिए यह पीतल की हौदी का एक खास उद्देश्य जो था वो यह था कि याजकों को इसमें पूरी तरह से दूसरे सब प्रकार की गंदगी से साफ और शुद्ध होना था। The first thing, पहली चीज it was for the priest only. ये सिर्फ याजकों के लिए ही था, It was not for all the people. सभी दूसरे लोगों के लिए नहीं था। You see, I've seen this thing happening. और पासवान जी ने ये होते हुए देखा है। The altar of burnt offering was for everyone. और देखिए होम बलि की वेदी जो थी वो सबके लिए उपलब्ध थी, But this bronze laver was only for the priests. लेकिन ये पीतल की हौदी हम जो देखते हैं ये सिर्फ याजकों के लिए ही था। Please understand this. समझिए इसे। Wherever I go in the world to preach the gospel, और जहां कहीं भी दुनिया के हिस्से में जाते हैं पासवान जी वचन people प्रचार love करने, healing, deliverance, and salvation and all that stuff, prophecy, they love it. और लोगों को चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, उद्धार ये सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं। But they don't give due importance to the word. लेकिन परमेश्वर के वचन को वे ज्यादा अहमियत या आदर नहीं देते। Very few people want to be discipled, want to learn the deeper things of God. बहुत ही कम लोग होते हैं जो चेले बनना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के गहरी बातों को समझना चाहते हैं। So you see that bronze laver, it was not for the common people, it was only for the priests. Somebody say, I'm receiving. आप देखते हैं ये Hallelujah. पीतल की हौदी जो है Yes. ये सब साधारण लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ याजकों के लिए ही था। You are called by God. अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है, If there is a purpose on your life, then you need to understand this truth very carefully. अगर आपके जिंदगी के ऊपर कोई मकसद और उद्देश्य है तो आपको इस सच्चाई को बड़े सावधानी और गौर से सीखने की जरूरत है। It's a privilege that we have the word of God. और देखिए ये हमारे बड़े सम्मान की बात है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। Now the second thing which I want to show you is this. और दूसरी चीज जो आपको दिखाना चाहते हैं वो ये And है, it is so connected to the New Testament. और नई नियम से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। You see, Aaron and his sons, आप देखते हारून और उसके बेटों को when they were ordained as priests, जब उन्हें याजकों के रूप में नियुक्त किया they गया were washed fully. तब उन्हें पूरी तरह से धोया गया था, And after that, और उसके बाद they were only needed to wash their hands and feet. उन्हें सिर्फ उनके हाथों को और पांवों को ही धोना पड़ता Go था। to Exodus 40 verses 11 to 16 quickly. और जल्दी से निकालें इस समय निर्गमन का 40वां अध्याय 11 वचन से 16 वचन में। Then you shall anoint the laver and his base and consecrate it. Then you shall bring Aaron and his sons to the door of the tabernacle of meeting and wash them with water. पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। 12वां वचन, तब हारून और उसके बेटों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर पानी से नहलाना, And then you shall put garments on them. और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना। And further it says that they may minister to me as the priest, for the anointing shall be an everlasting priesthood throughout their generations. और आगे लिखा है, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। The word wash over there, if you see it in Hebrew, देखिए जो शब्द वहां पर नहलाया जाना या धोया जाना इब्रानी भाषा it में means देखिए, like taking a bath, a full bath. और इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से आप स्नान ले रहे हैं, And it नहा was रहे हैं। done by Moses, the man of God. और परमेश्वर का जन्म मूसा के जरिए किया गया, It was once and that's it. बस एक बार और हमेशा के लिए। Are you following me right now? क्या आप समझ रहे And हैं? after that, और उसके बाद whenever they used to go to in the tabernacle, जब कभी वो मिला वाले तंबू में they जाते had to come and wash their hands उन्हें आकर सिर्फ हाथ धोना पड़ता and wash their feet. और पैरों को धोना पड़ता था। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Why the hands and the feet only? और क्यों सिर्फ हाथ और पांव ही? Because the hands, you see, they represent everything that we do. क्योंकि हाथ जो है, देखिए जो कुछ भी हम काम करते हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करती It है। speaks of our service to God. परमेश्वर के लिए जो हमारी सेवा है उसके बारे में बताती Our है। service to God must be sanctified. परमेश्वर के प्रति जो हमारी सेवा है वो शुद्ध होना Our चाहिए। service to God must be excellent. परमेश्वर के प्रति हमारी जो सेवा है एकदम उत्तम और श्रेष्ठ होनी चाहिए। Somebody shout hallelujah. चिल्लाएं हालेलुया। You cannot offer to God anything. No, no, sir. परमेश्वर को आप कुछ भी ऐसी अर्पण नहीं कर You सकते। have to be excellent. आपको उत्तम होना पड़ेगा, It has to be your best. एकदम श्रेष्ठ होना चाहिए। Then the priest has to wash their feet. फिर उसके बाद देखिए उनके पांव को धोना पड़ता। Why the feet? क्यों पांव? The feet represent where they went with their lives. और पांव जो है इस बात का प्रतीक बताती है कि वे अपने जिंदगी में कहां-कहां गए हैं। It represents our walk with God. परमेश्वर के संग जो हमारी चाल है, हमारा सफर है, इसके बारे में ये बोलती है। You see, this very, very powerful. देखिए बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है ये। So the priest, whenever they used to go, they used to wash their hands and their feet. तो जब कभी याजक लोग जाते थे तो देखिए उन्हें अपने हाथों को और पांवों को धोना पड़ता था। This was every time. Otherwise, they could not offer the burnt offering. Neither they could go into the tabernacle to go deeper into His presence.
नहीं तो देखिए वे होम बलि के वेदी पर आके वहां कोई बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे और ना ही पवित्र स्थान में जाके परमेश्वर की उपस्थिति गहराई में जा सकते थे। If you want to have a deep encounter with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ एक गहरी मुठभेड़ करना चाहते हैं, one day there was a great man of God called Paul Yonggi-Cho, एक दिन परमेश्वर के एक महान जन पॉल योंगी-चो जी and he was fasting and praying for some days. कुछ दिनों के उपवास और प्रार्थना में वो लगे हुए थे। He asked God and said, God, show me how do I grow in my walk with you. उन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे दिखा, मुझे बता कि मैं आपके संग जो मेरी चाल मेरे सफर में मैं कैसे बढ़ सकता हूं। And the Holy Spirit showed him the model of the tabernacle. और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा ने उस मिलाप वाले तंबू का एक नमूना उन्हें दिखाया। And he said, Lord, take me deeper. तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे गहराई में ले जा। And he said that one piece of furniture, he says, I will teach you how to station yourself there in the spirit and pray. And that's how he gave birth to that book called the Tabernacle Prayer. और फिर देखिए परमेश्वर ने उसे कहा कि जो मिलाप वाले तंबू में जो भी फर्नीचर के सामान है, जो चीजें हैं, एक एक करके मैं उसके बारे में गहराई तुम पर जाहिर करता जाऊंगा। और वो सीख लेने के बाद फिर हम देखते हैं उन्होंने वो मिलाप वाली प्रार्थना, तंबू वाली प्रार्थना नामक पुस्तक को उन्होंने लिखा। This is very, very powerful. ये बहुत ही जबरदस्त। Pastor Paul Yonggi-Cho or Pastor David Yonggi-Cho is one of the same. He attributes the growth of his church to understanding the secret in the tabernacle. और देखिए उन्होंने इस बात का पूरा श्रेय दिया है कि उनकी कलीसिया में जो वृद्धि हुई वे मिलाप वाले तंबू के रहस्य में जो बातें थी उनको समझ के किए। People of God, if you want to grow in the presence of God, your spiritual growth is directly connected to what I'm sharing with you right now. How do you grow in the things of God? This is the secret how you grow. परमेश्वर के लोगों, अगर देखिए आप परमेश्वर बढ़ना चाहते हैं तो ये रहस्य जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की चीजों में, वचन में बढ़ सकते हैं, ये है वो रहस्य। Many people they speak about King Solomon. देखिए बहुत सारे लोग जो हैं चर्चा करते, बातें करते राजा सुलेमान के बारे में। Oh, Solomon was a great king, and even the Jews they swear by Solomon. They say, man, that was a great king and all that stuff. But you see, Solomon had a revelation of the tabernacle of God. देखिए वे कहते हैं कि सुलेमान एक बहुत महान राजा था। यहाँ तक कि यहूदी लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं कि सुलेमान बहुत महान राजा था, लेकिन हम देखते वो भी मिलाप वाले तंबू से I'll explain right बताते now. हैं। You see, when King David passed away, अब देखते हैं कि जब राजा दाऊद का देहांत हो गया now he's faced with a big kingdom, with a big army. और उसके बाद देखिए सुलेमान के सामने एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ी फौज खड़ी थी। David defeated so many armies और दाऊद ने कई फौजों को, कई सेनाओं को हराया था with the help of God. परमेश्वर की मदद Now से। those people definitely wanted to take revenge and hit back. और देखिए अब वे शत्रु यकीनन हमला करके बदला लेना चाहेंगे। They know now David is gone. अब उन्हें खबर मिल गई थी कि दाऊद मर गया है। Now they know, अब उन्हें पता है oh, this guy is inexperienced. ये व्यक्ति जो है ये तो बिल्कुल अनुभवहीन है। You see, running a kingdom is not a joke. और ध्यान से समझिए, एक राज्य को चलाना ये कोई मजाकिया बात नहीं At है। that time, उस समय पर he catches the revelation of the altar of the burnt offering. Come हम on, देखते somebody. हैं होम बलि की जो वेदी का प्रकाशन वो पकड़ लेता है। In those days, there is no temple now. और उन दिनों में देखिए कोई मंदिर नहीं हुआ करता But था, then he understands the altar of the burnt offering. I want you to understand this. लेकिन वे इस होम बलि की वेदी के रहस्य को समझ लेता And है। on that altar, और फिर उस he वेदी पर offers 1,000 burnt offerings. 1000 होम बलिदान चढ़ाता है। God appears to him. फिर तुरंत परमेश्वर उसके सामने प्रकट होते Are हैं। you following me right आप now? समझ रहे हैं इस वक्त? Then God blesses him with wisdom. फिर परमेश्वर से बुद्धि से आशीषित Now करता he है। doesn't stop over there. और देखिए वहीं पर नहीं रुकता। Now अब David has made plans how to build the second temple. देखिए दाऊद ने योजना बना The लिया first temple, था sorry. कि कैसे पहले मंदिर को बनाना है। And David said it has to be grand. और फिर दाऊद ने ऐसा कहा था कि एक तो बहुत भव्य शानदार होना चाहिए। Now Solomon again understands the principle. Please listen to this और carefully. देखिए सुलेमान फिर से उस सिद्धांत, उस खास सिद्धांत को समझ लेता These है। are all hidden inside. ये सब कुछ जो है इसमें छिपा हुआ है। You see, now the wisdom of God is operating in him. अब देखिए परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर काम कर रही है। And the Bible says in the book of James, और बाइबल ऐसे कहती है याकूब की the पत्री, wisdom that is from God वो बुद्धि जो परमेश्वर से आती है is peaceable, it's divine, it's always flows in line with what the revelation has come earlier. Are you with me so ये far? देखिए दैवीय होता है, पवित्र और मिलनसार होता है, और जो प्रकाशन आपको पहले मिला है ये उसी के साथ बिल्कुल मेल खाता है। Now after the burnt offering, और देखिए होम बलि के उस वेदी के बाद, the second thing after the altar of burnt offering, और देखिए होम बलि की वेदी के बाद दूसरी चीज, the second thing is the bronze laver. वो आता है पीतल की हौदी। Now how does Solomon build it? और देखिए कैसे सुलेमान ने उसे बनाया। Now I want you to see this right now. और चाहते हैं कि आप इसे देखें, This is amazing. बहुत ही अद्भुत I है। want you to read with me. Please read this with me right now. और चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें। 1 Kings chapter 7. पहले राजा की पुस्तक उसका 7वां अध्याय।
verses 13 and 14. उसके 13वें 14वें वचन। When he's building the temple now, the देखिए first time, जब वो मंदिर बना रहे थे he calls a person called Hiram from Tyre. और देखिए वो सोर से हिराम नामक एक व्यक्ति को बुलाता है। Now this man's Hiram, the Bible scholars say he had a Jewish mother and he had a foreigner as a father. और देखिए यह हिराम जो है हम देखते हैं बाइबल के विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी यहूदी माँ थी और विदेशी पिता था। And this man was full of wisdom. Listen to me. और ध्यान से सुनिए ये व्यक्ति जो था पूरी तरह बुद्धि से परिपूर्ण था। And Solomon is building the first temple. और सुलेमान पहला मंदिर बना रहा था। Now watch this. अब गौर करें। When he builds this laver, और देखिए जब वो अपना हौद बनाता है he doesn't just build it as a bronze laver. और देखिए सिर्फ वो पीतल की हौदी जैसा ही नहीं बनाता He builds it so big और देखिए इतनी निपुणता से बनाता है। that First Kings 7. पहले राजा की पुस्तक 7वां अध्याय 23वां वचन पढ़ें। See what it says. देखिए वचन में क्या And he लिखा है। made the sea. Just what does it say? He made the sea of cast bronze. My goodness. और देखिए हौस बनाता है वो एक पीतल का। Now it is called a sea of cast bronze. और देखिए एक प्रकार का समुद्र जैसा बना देता है हौस का। Do you know how much water it carried? आप जानते हैं कितना पानी देखो लिया होगा? It's mentioned in the word of God. It mentioned 24,000 gallons of water. और देखिए इस पर दर्ज है परमेश्वर के वचन में 24,000 गैलन पानी का। I was studying this. और अध्ययन कर रहे थे And I इस said, पे। why did Solomon have to build such a big thing? और क्यों सुलेमान को इतनी बड़ी चीज बनाना पड़ा? You see, he had understood that this thing represents the word of God. और आपको समझने की जरूरत है ये चीजें जो है परमेश्वर का वचन का प्रतिनिधित्व करती हैं। And do you know who wrote the book of Proverbs, many of it? और आप जानते हैं नीति वचन की पुस्तक में ज्यादा अध्याय किसने लिखे हैं? Proverbs, नीति वचन King Solomon. राजा सुलेमान So ने। you understood this right now? तो आप समझ गए You इस see, बात when को? you understand that revelation, जब आप इस प्रकाशन को समझते हैं your life moves in that direction. तब आपकी जिंदगी उस दिशा में बढ़ जाती है। Let's say you have a revelation of giving. और मान लीजिए आपके पास देने का प्रकाशन हो You will follow that revelation and you'll become a giver, and because of that, many things will be released in your life. How are you और with me देखिए, right now? आप उस प्रकाशन के दिशा में जाएंगे और आप देने वाले बनेंगे और बहुत सारे लोग आपके वजह से देखिए आपके पीछे आएंगे। Solomon had a revelation of the altar of burnt offering. He had a revelation of the bronze laver, and when he builds a temple, he built it so big. हम देखते हैं सुलेमान के पास होम बलि की वेदी का प्रकाशन था। फिर उसके बाद देखते हैं सुलेमान के पास वो पीतल का जो हौद जो था उसका भी प्रकाशन था और फिर उसने जो बनाया तो इतना बड़ा बनाया। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं? That literally, people could be immersed into it. और लगभग ऐसा कि पूरे लोग जो है उसमें समा सके। That is why he could write so much Proverbs that today people read Proverbs 1. Today, if it is the first day, they will read 1. Tomorrow is 20th, they will read 20th. And for every day of the month, there is a Proverbs chapter. आप देखते हैं Come on, कि somebody. लोग जो नीति वचन को See इस that? तरह से पढ़ते हैं। अगर आज पहला दिन There is है no तो 32, नीति there is वचन का 31. अध्याय 1 पढ़ेंगे। अगर 20वां दिन है तो नीति वचन का Jesus. अध्याय 20वां पढ़ेंगे। और देखिए कोई 32 ऐसा नीति वचन नहीं, सिर्फ 31 है क्योंकि 31 दिन होते हैं। I want you to understand these truths. चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को समझें। It all represents the word of God. और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करती It है। pointed towards Jesus. यीशु की ओर ये इशारा करती है। Amazing. अद्भुत। You know, you should open your mouth, open your heart this evening and say, Lord, give me an understanding of this bronze laver. It should not just tickle your ears. तो देखिए आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर देखिए मुझे इसका प्रकाशन दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपके बस कानों में खुजलाए। If you're a mother watching me अगर आप कोई माँ है जो देख and रही you catch this है और revelation, इस प्रकाशन को आप पा लेती है, let me tell you, your बताने- children will also start moving in the word. Hallelujah. आपके बच्चे भी वचन की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। If you are a father watching me right अगर now, आप कोई पिता है जो देख if रहे you हैं, understand this truth about the bronze laver, अगर देखिए आप पीतल की सौदी के सच्चाई और प्रकाशन को समझ and लेंगे you will understand its significance in the scheme of things, और देखिए अगर आप इसको सही तरह व्याख्यान के मुताबिक your इसकी बातों को family समझेंगे will start developing in the word. तो आपका परिवार परमेश्वर के वचन में बढ़ता और विकसित Your समझिए। life follows the revelation that you carry. Come on, और देखिए somebody. जो प्रकाशन आप पाते हैं आपकी जिंदगी उसी प्रकाशन की दिशा में जाती है। Let me fast forward it to the New Testament now. चलिए रफ्तार में आगे बढ़ते हुए सीधे हम नए नियम में आते हैं। One day, Jesus, before going to the cross, और एक दिन यीशु क्रूस पर जाने से पहले all his disciples are in the room now. देखिए यीशु के सारे चेले अब कमरे में एक साथ में थे And what does he do? और फिर क्या करते हैं? He carries a towel, वो टॉवल लेते हैं takes a basin of water, और पानी का एक ऐसा बेसन लेते हैं and he starts washing the feet of the और disciples. चेलों के पांव धोने लगते Please listen very carefully. हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। Now, see, Jesus, the bronze laver. हम देखते हैं यीशु को वहां पर पीतल की हौदी। Oh, come on, somebody now. चलिए कोई तो Some of you already getting it wrong. कोई तो समझ रहा है इस वक्त। Now, he's washing the feet of his disciples. और देखिए अपने चेलों के पांव को धोते हैं। Now, he comes to our man called Peter. फिर उसके बाद हमारे मुख्य व्यक्ति पतरस के पास Now, आते I हैं like Peter. और पतरस को पसंद करते You know हैं। why? He's like me. और देखिए क्योंकि वो हमारे जैसे And हैं। he's not perfect, वो सिद्ध नहीं but he's Peter.
लेकिन वो पतरस है, He's made many mistakes, बहुत सारी गलतियां उससे होती but है, he's Peter. लेकिन वो पतरस है। He loves the Lord and Lord loves him also. वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु भी उससे प्यार करता Now है। Jesus comes to Peter. और यीशु आते पतरस, John 13 verse 8. यूहन्ना Not का 15. 13वां अध्याय उसका 8वां वचन। Peter said to him, you shall never wash my feet. पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। You know, he was probably embarrassed. He said, my goodness, how can Jesus wash my feet? और शायद कि उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी होगी कि कैसे यीशु मेरे पाँव धो सकते हैं। Probably even we would say the same thing. Jesus, what Jesus? Please don't wash my feet, please. और शायद यकीन हमने भी ऐसे कहा होता, यीशु क्या आप प्रभु, ये क्या है, आप मेरे पाँव मत धोए। And Jesus answered him and said, और फिर यीशु से उत्तर देते हुए कहते हैं, Peter, पतरस, if I don't wash you, अगर मैं तुम्हें नहीं धोऊंगा you have no part in me. Wow. तो मेरे साथ तेरा कुछ भी हिस्सा नहीं। This is very prophetic. ये बहुत ही भविष्यवाणी तौर पे If है। we don't allow the word of God to wash us, then we have no part in Jesus. अगर हम Hello. परमेश्वर के वचन को हमें धोने की इजाजत नहीं देंगे तो हमारा यीशु के साथ कोई हिस्सा नहीं है। If you want to be connected with Jesus, अगर आप यीशु के साथ जुड़े होना if चाहते you हैं, want to be part of Jesus, अगर आप यीशु में का हिस्सा होना चाहते then हैं, you have to allow yourself to be filled with the word so that you become part of the word. Come on, help me तो जरूरी somebody. है कि आप अपने आप को वचन से Wow. भरने की इजाजत दे दीजिए ताकि आप खुद भी वचन का एक हिस्सा बन जाए। Come on, somebody. चलिए कोई तो। See, Jesus is not talking some emotional stuff. और देखिए यीशु यहाँ पर कोई भावनात्मक चीजों को नहीं बोल रहे हैं। He says, Peter, if you don't allow me to wash you, अगर तू तुझे धोने की इजाजत न दे you have no part in me. तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं। Can you look at the bronze laver and see where I'm going now? तो अब क्या आप देख सकते हैं इस पीतल की हौदी, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? When you understand that bronze laver, it was physical. We can understand it. देखिए जब आप समझ जाते हैं उस पीतल की हौदी के बारे में, देखिए भौतिक शारीरिक तौर पे है, हम समझ सकते हैं। The priest could not offer a sacrifice. The priest could not enter the presence. The bronze laver. So you see what is stopping you from entering the presence of God? Come on, somebody. देखिए याजक लोग इसके बिना जो है उस होम बलि की वेदी पर कोई बलिदान नहीं चढ़ा सकते, ना पवित्र स्थान में जा सकते हैं। तो आप इसकी खासियत और अहमियत को समझ सकते हैं अभी। Many people write to me and say, बहुत सारे लोग लिखते हैं, Pastor, पासवान जी I want to pray, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ but I cannot pray. लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। Hey, go to the bronze laver. Go to the word. Allow the word to wash you. Come on. और पीतल की हौदी के पास जाएं, वचन को इजाजत दीजिए कि आपको धो ले, You become part of him. आप इसमें का हिस्सा बन जाएंगे। Let me go further. चलिए आगे बढ़ते हैं। Then Simon Peter said to him, फिर शमौन पतरस ने उससे कहा, Lord, if it's like that, प्रभु अगर ऐसा है then why are you washing my feet only? तो आप मेरे पाँव ही क्यों धो रहे हैं? Wash my hands, my head. Wash me fully. मेरे हाथ, मेरे सिर, मुझे पूरी तरह से धो दो। I like Peter, you know. पतरस को बहुत Says, God, if that's the way, वो कह रहा है प्रभु अगर ऐसा है then wash me तो fully. मुझे पूरी से नहला ही दो ना। There again Jesus says, see, फिर देखो he's इसने an कहा। amazing guy. बहुत अद्भुत है वो। I like Peter. He said, part Lord, I want to be inside of you. वो कहता है अगर हिस्सा प्रभु मैं तो पूरी आप में ही No, घुस I जाना love चाहता Jesus. You see, हूँ। आप देखते हैं यीशु को, he didn't speak something emotional. देखिए उन्होंने कुछ ऐसे भावनात्मक बात नहीं कही, He always spoke something prophetic. हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ भविष्यवाणी बात बताई। Jesus said, यीशु ने कहा he who is bathed needs only to wash his feet. जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की जरूरत। Come on, somebody help me देखिए now. कोई तो सुने, Aaron Harun. and his sons, और उसके बेटे they were priests. वे याजक थे, They had to be only washed fully once. Come on, और somebody. देखिए उन्हें पूरी तरह से धोआ जाना या नहलाया जाना Now, when सिर्फ we एक ही बार read होता the था। New Testament, we can't understand और these जब हम truths. नए नियम में आकर इन बातों को पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं But पाते। when we go to the tabernacle and we study it, it's, oh, that's why Jesus said like that. लेकिन जब हम उस मिलाप वाले तंबू में जाकर जब उसके ऊपर अध्ययन करते हैं तब समझ जाता है, ओ इसलिए यीशु ने ऐसा Oh, कहा। are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? You see, Moses washed them. That was the law. और देखिए मूसा ने उन्हें धोया, ये तो व्यवस्था था। The Bible says the law came through Moses. Now watch this. अब बाइबल ऐसा कहती है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, And now, और अब here Jesus is washing them. यहाँ पर यीशु ने धो रहा है। Now you may say, where did Jesus wash them? और शायद आप ये कहें कि कहाँ यीशु ने धोया, When did Jesus wash them? कब यीशु ने उनको It धोया? is not written when Jesus washed them. ये तो लिखा हुआ ही नहीं कि कब यीशु ने उनको धोया But था। if you read John 15 verse 3, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना के 15वें अध्याय 3 वचन में, and Jesus said, यीशु ने कहा you are clean, तुम शुद्ध हो, you are washed तुम धोए गए हो because of the word I have spoken to you. Come on, वचन somebody. मैंने तुमसे कहा Hallelujah. उसके जरिए। 3.5 years 3.5 साल तक as they were listening to his word, जब वे यीशु के वचन से सुन रहे थे, they were being washed. वे धोए जा रहे They थे, were being washed. वे धोए जा रहे थे, They were being washed वे from the धोए जा head रहे to थे, the foot. They were being washed. सिर से लेकर पांव तक वे धोए जा रहे There थे। Moses washed Aaron and his sons. वहां पर मूसा ने हारून और उसके बेटों को The धोया, law washed Aaron and his sons. व्यवस्था ने हारून और उसके बेटों को धोया था। Now here grace is washing Peter, the apostles. Come on, somebody. Hello. लेकिन are you यहाँ with पर हम me देखते right हैं now? अनुग्रह जो है
प्रेरित पतरस को याद हो रहा है। This is so powerful. बहुत ही जबरदस्त है ये। This tells me तो ये बताता है every time I hear the word, हर बार जब मैं वचन सुनता हूँ it's washing me. ये मुझे धो रहा It's है, sanctifying me. ये मुझे पवित्र कर Even रहा है। right now you are being sanctified. Come on, help me इस वक्त somebody. भी आप पवित्र किए जा रहे हैं, शुद्ध किए जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. That's why you need to hear the word. इसलिए आपको वचन सुनने की That's why जरूरत you है। need to read the word, meditate the word. It washes you. इसलिए आपको वचन को पढ़कर उस पर मनन करने की जरूरत है, ये आपको धोता Mark my है। words. देख लीजिएगा, Do it for 3 weeks. अगले 3 हफ्तों तक करिए, In 21 days, 21 दिनों में there'll be a new you. एक नए आप Oh, होंगे। somebody helping me. कोई तो मदद करे। Lift your hands and say, I receive right अपने now. हाथ उठाकर कहा, मैं ग्रहण करता हूँ इस So वक्त। in other words, Jesus was saying, Peter, तो दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, पतरस, only your feet need to be washed. सिर्फ पाँव धोए जाने की जरूरत है। Because Peter, क्योंकि पतरस, your walk has to be sanctified every day. हर दिन के तुम्हारी चाल जो है शुद्ध होना चाहिए। This is so powerful. ये बहुत ही जबरदस्त है। So you see everything in the tabernacle of Moses. तो आप देखते हैं मूसा के मिलाप वाले तंबू में हर एक It चीज pointed to Jesus. यीशु की ओर इशारा करती थी, Pointed to the word. वचन की ओर इशारा करती थी। Sanctification. पवित्रीकरण, You can't stop at salvation. आप बस उद्धार के स्तर में ही रुक नहीं सकते। Your way of life. आपके जीवन का तरीका, Twisting, manipulation. छलबाजी करना, टेढ़ी मेढ़ी बातें, Did I tell you? No, yes, nah. क्या मैं कहता हाँ नहीं हाँ, And you know that it's not right. और आप जानते हैं कि आप ऐसे सही नहीं है। How do I change it? कैसे मैं बदल सकता हूँ? Sanctification. पवित्रीकरण, Oh, this is really powerful. वो सचमुच ये सामर्थ्यशाली है। So you see why Jesus had to wash the feet of his disciples. Why? It wasn't just a ritual. तो क्या क्यों यीशु को चेलों के पांव धोने पड़े? क्या ये कोई रीति रिवाज के Jesus अनुसार was preparing them for service. था? यीशु उन्हें तैयार कर रहे थे सेवा के Jesus लिए। was preparing them for bigger things. यीशु उन्हें तैयार कर रहे थे और भी बड़ी चीज के लिए। Solomon had a revelation. सुलेमान के पास प्रकाशन था। I pray that you get this revelation. प्रार्थना करते कि आप ये प्रकाशन पालें। Apostle John, प्रेरित यूहन्ना, when he stood before the throne of grace, when he stood in the heavenly courts, जब वे स्वर्गीय आंगन में खड़े हुए there he saw a sea of glass. Come on, और somebody. वहां पर देखे उन्होंने कांच का एक समंदर देखा And he was walking on that. और उस पे वो चल रहे थे। That was the word. वो था वचन। It's no longer a labor. वो कोई हौद नहीं था, It's no longer a sea. वो कोई समंदर भी नहीं था Oh, पानी it was का, a mighty ocean maybe of glass. It is the word. The word is it transparent. और ये It एकदम was a देखे sea, the Bible says. बाइबल ऐसा कहती है, कांच का देखिए एक समंदर महासागर जैसा फैला हुआ था। People of God, परमेश्वर के लोगों, many years ago, कई साल पहले there was a man of God परमेश्वर के जन हुआ करते थे, who probably you know. जिन्हें शायद यकीन संभव है कि आप जानते हैं, Maybe you have heard him. शायद उनके बारे में आपने He सुना। was on a flight वे एक जहाज उड़ान में थे and he was praying. और वे प्रार्थना कर रहे And थे suddenly his eyes opened to see heaven. और अचानक उनकी आंखें खुल गई स्वर्ग को देखने के लिए And he saw a big throne. और उन्होंने बहुत बड़े एक विशाल से सिंहासन को देखा And then he saw people coming through a sea of water. और फिर उसके बाद वहां पर लोग पानी के एक समुद्र में से वहां आ रहे हैं And they were not just walking to the water, they would just come out of the water and they would go into the heavenly city. और देखिए वो चलते हुए नहीं जा रहे लेकिन उस पानी में How? बस ऐसे निकल के आ रहे हैं और उस स्वर्गीय come in a नगर में lift? जा रहे हैं। How we come in a कैसे हम lift? लिफ्ट में से आते हैं ना, You don't go like this. You, आप you, ऐसे you नहीं just जाते, come up. आप सीधा ऐसा ऊपर आते हैं। And he saw all the people coming out of the water. और उन्होंने देखा कि सारे लोग जो है पानी में से ऊपर आ And रहे they हैं। would walk on the water and go into the heavenly city. फिर उसके बाद वचन पे चल के वे स्वर्गीय नगर में जा रहे हैं। And then the man of God asked the Lord, फिर उसके बाद परमेश्वर के जन ने प्रभु से पूछा, what is this? ये क्या है? The man of God heard the Holy Spirit saying, go to the book of Revelation. तब परमेश्वर के जन ने पवित्र आत्मा को उनसे कहते हुए सुना कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाओ। This is the sea of the word. यह वचन का वो महासागर When है। they come through that, जब वे उसमें से निकल के आते हैं, they are prepared to enter the city. वे तैयार हैं उस नगर में प्रवेश All करने के लिए। the worries, all the pain, all the trauma, everything is forgotten. वो सारा दर्द, सारी पीड़ाएं, सारे जो वेदनाएं जो हैं, सदमे सब भुला दिए गए हैं। Some people died in an accident, कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर मर in गए, pain, दर्द में, in hunger, भूख में, in sickness. बीमारियों में, Nothing they remember. कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता। The joy comes in their life. वो आनंद और खुशी उनकी जिंदगी में। People of God, परमेश्वर के लोगों, that's what it is. यही तो है The bronze laver. पीतल की हौदी, From there, the sea of Solomon, the sea, जहाँ से हम देखते हैं सुलेमान का वो समुद्र, and the book of Revelation, फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य की the पुस्तक, sea of glass. वो है कांच का महासागर। Today, आज can you get into the word क्या वचन में जाएंगे so that your mind, your life will be renewed? ताकि आपकी जिंदगी, आपका मन सब नया हो जाए। Don't neglect the word. वचन को अनदेखा मत करिए, It will really bless you. यकीनन ये आपको आशीष पहुंचाएगा। Hallelujah.